Very good morning, everybody. Today, as it is mentioned, I will be speaking on the Career Advancement Scheme of UGC. Let me share my screen. I hope my screen is visible for everybody. Yes, sir. Yes. Yes. So thank you very much for your confirmation. So as I mentioned, today I will be speaking on promotion of teachers under Career Advancement Scheme. Now, question is, if everything is given in guidelines, as it is mentioned by Honorable Principal of this college, Dr. Kokode sir, that UGC has released its guideline, and accordingly, respective state government has issued government resolution, and then accordingly the respective universities has also come up with their own statute and ordinances. Now if everything is there, then why should we organize this kind of lectures, right? Now although everything is there on paper, but many a times interpretation is going to be very, very crucial, very, very critical. And as a result of that, we have you must have experienced, many of you must have experienced humiliation also. Some of you must have received good experience out of this, and many of you must have a horrible experience too. And therefore it is really important for all of us, all members of teaching fraternity, to understand what is there and what is not there. And moreover, many times we need to understand the line between, like the information between the lines also. That is also equally important. So today I will be like, because whatever is there in the guidelines, I'm going to put in front of you, and then I will be, keeping my own experience during, as I mentioned yesterday also, during last 32 years, I am in this field. I started my career from college, affiliated colleges, right? And then since 1999, I started working in university, and then I had a good experience of foreign universities as well. So the entire experience I'm going to, share today while, discussing various provisions of CAS scheme. Now, question is, what is CAS, right? Career Advancement Scheme. As per my opinion, this is a kind of ladder. This CAS is kind of ladder for each one of us to have a vertical development. Vertical development in terms of all, like this ladder is going to provide us a kind of opportunity to enhance our the financial status, and at the same time it is going to provide us an opportunity to enhance our social status as well. Why I'm saying the financial status? Because I still remember those days when I started my career in 1988, because that was my first appointment, and at that time the fourth pay was about to implement. But I remember the first salary slip, and I was getting 2,375 rupees. Still I remember that number. The first salary I got in the year 1988, working as a lecturer in senior college of one of the affiliated of this university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. The first salary was 2,375, and today, after 32 years, my salary is approximately 2.4 lakhs. You can see there is a huge enhancement, hike in my salary. So right from this fourth pay, like fourth pay, then fifth pay commission, and then we got sixth pay. There was a substantial, hike in fifth, right from fifth pay to sixth pay. And still, although it is not that much significant, but still there is a remarkable. Although it is marginal, but still there is a hike in salary, even from sixth pay to seventh pay. What does it mean? It means that this ladder, this CAS ladder, has provided us a kind of financial, like vertical development for financial improvement. This is one thing. At the same time, it is helping us, all of us, because I'm also a teacher. It is helping us because, fortunately, let me tell you, my friend, when I joined one of the affiliated colleges, I was lecturer. Then I got promotion under senior scale, under selection grade. I experienced all the stages of CAS. Let me tell you. That is why I'm very, very much familiar with all these guidelines. And then I got selected as a reader in the university, North Maharashtra University, and then again in BAMU, and then through CAS I got professor, and then under CAS itself, very recently I got promoted as a senior professor as well. So right from senior scale, very first scale of this teacher category, to last scale, right, 14 to higher, right, professor to senior professor, I have gone through all those stages. And then while going through that, I have got lot of collection of those experiences which I'm going to share with you.
So this ladder is going to provide us a kind of enhancement in financial status. At the same time, it is going to provide us a kind of enhancement in social status as well. अब देखिए, आप सोचिए कि हम जब छोटे थे, I'm sure most of you must have had your like primary education from Marathi medium or your vernacular medium, right? Most of you. तो आपको पता होगा कि आप जो स्कूल में जाते होंगे वो like during those days you must be calling your teacher as a guruji, right? Those gurujis used to have a lot of respect in the villages during those days. I still remember जब मैं छोटा था, मेरे गांव में जब भी टीचर के ट्रांसफर होकर आते थे, we used to be very jealous, let me tell you. उनके जो बेटी बेटियां होती थी उनके पर हम बड़े जेलस हुआ करते थे कि यार इनके बेटे बेटियों को एक अलग प्रिविलेज मिलता है जो हमें नहीं मिलता है. आई यूज्ड टू बी वेरी जेलस, लेट मी टेल यू. एंड मोरओवर, जब वो टीचर ट्रांसफर होकर गांव में आते थे तो सभी लोग उनके इर्द गिर्द रहा करते थे. उनको मतलब उनका रहने का इंतजाम, उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वी यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिम, राइट? So that kind of respect we used to have. But over the time, अब देखिए, over the time, because of हमारी हरकतों से, क्योंकि मैं भी टीचर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए I need to be very outspoken. So हमारी हरकतों से क्या हुआ, हमने जो रिस्पेक्ट था गुरुकुल के जमाने में, जो रिस्पेक्ट था, that we lost those respect. But now अगेन फिर से इतिहास के पन्ने जो है फिर से लिखना शुरू हो गए, ऐसा मैं कहूंगा कि देयर आर मेनी टीचर्स नाउ, दे हैव अर्न रेपुटेशंस ऑफ टीचर्स लाइक एनीथिंग. देयर आर मेनी नोटेबल टीचर्स अक्रॉस दिस कंट्री हु आर वेरी, त्याला आपण मराठी धाडाचं शिक्षक म्हणतोय. सो दॅट काइंड ऑफ टीचर्स आर देयर, मेनी टीचर्स आर देयर in the many institutions, and those teachers need to be respected. And that is the reason, like, क्योंकि कैसे आपको पता है कि पहले teaching fraternity was the lowest paid fraternity, but now with the right from 4th pay, 6th pay, 7th pay, अभी देखिए कि teacher fraternity is going to be one of the adequately paid teaching fraternity. मैं intentionally adequately paid कहता हूँ क्योंकि we are working day and night, because there are many teachers that are working day and night. जैसे कि हम घर में भी होते तो भी रात में दिन रात पढ़ना पड़ता है. आई स्टिल रिमेम्बर माय अर्लियर डेज 1988 में जब मैंने टीचिंग शुरू किया था, तो एक लेक्चर के लिए 2-2, 3-3 दिन निकालने पड़ते थे. Like we used to have a lot of nervousness and all that to begin with in the beginning phase of this career. तो क्योंकि यहाँ तो जो भी है आपको सामने बताना पड़ता है. आप अगर उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो वो तो रात आपकी चली गई. So this kind of profession you have, and this is noble profession as well. You have to do lot of hard work. You need to be updated, and then you are going to be rewarded every day. Every day you are going to be rewarded. So that is why this is very noble and this is very wonderful profession. I am enjoying like anything this profession. So as I mentioned, so this is going to provide a social status as well. But the social status is not only because आप देखिए कि पैसों से भी हमारे social status बढ़ता है. एक समय था कि जो हमें properly salary नहीं थी, तो like it was like हमारी तरफ देखने का लोगों का नजरिया उतना अच्छा नहीं हुआ करता था. जब भी यंग जो अभी जो ऑडियंस में होंगे उनको पता है कि जो शादी करने के लिए जब आप निकलते होंगे ड्यूरिंग दोज डेज, हमें तो बड़ा मुश्किल होता था कि भाई नहीं टीचर है, ज्यादा सैलरी नहीं है. बट नाउ लाइक यू आर वेरी हेवीली पेड, अट्रैक्टिव सैलरी है. नाउ यू आर गोइंग टू हैव ऑल दो स्टेटस, राइट? एंड मोरओवर अर्लियर ऐसा था कि लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, सिलेक्शन ग्रेड, बट नाउ UGC has changed the nomenclature as well. Assistant professor, associate professor, एक अच्छा स्टेटस मिला है. Now question is, this ladder has provided opportunity for enhancement in financial status, enhancement in social status. Now what is our responsibility? Now UGC has done its job, government of Maharashtra or respective state government has done their job, university has done their job, we got good attractive salary. Now what is in return? Now what we should do, right? Now this is very important topic that I am going to speak about little bit about this. Like, we need to be very accountable, we need to be very responsible, and therefore I believe that in return we should do something else, right? Very substantially. And that is why I thought I am going to tell you some this is going to be outline of my talk today, suggestions for continuous improvement. Because yesterday I was talking on NIRF, and then I told you that the philosophy of NIRF is not only NIRF and NAC is having is to have the continuous improvement, right? Now if at all we are believing on this terminology continuous improvement,
how to have the continuous improvement. Yesterday I could not throw any light on that, so today I will be speaking little bit about that, like my suggestions out of my experience. And then I will be like as it is mentioned by principal of this college, that the quality publications are going to be very, very crucial. Whenever we are talking about API, your quality publications are going to play a very crucial role. So I'm going to tell you how can you publish your data, because I have seen over my own experience, I have seen there are many good research scholars, but because of just they don't have awareness, they are not properly aware. As a result of that, although they are very honest, very committed, but still in spite of their honesty and like integrity, they are not being able to publish their data in good journal. So I'm going to tell you like how publication can be done, what are the options available, and then I will be focusing on eligibility of various teaching criteria, teaching positions, academic performance indicator, how the calculation can be done, and then I will be summarizing. Now, before I go through impact of quality publication, I'm going to suggest you something, right, for continuous improvement. Now, I'm going to tell you about this particular concept, Kaizen concept. I would request, this is my humble suggestion and humble request to all the participants of this webinar, that we should adopt Kaizen in every walk of our life, right? Now, what is Kaizen? Kaizen is a Japanese business philosophy for continuous improvement of working practices, personal efficiency, and so on and so forth, right? The question is, now if it is Kaizen stand for continuous improvement, then why it is not being adopted? Now let me tell you, my friend, this Kaizen concept, although it is Japanese business philosophy, but across the globe this has started, like many academic institutions started adopting this, right? And that is the reason why they are well ahead of us. Yesterday I was talking about the QS ranking, and we are not able to figure out ourselves in first 100, right? This is one of, there are many reasons, but this is one of the reasons. Like we don't follow, we always speak about the continuous improvement, but we don't know, because you need to know a scientific method, you need to know the scientific methodology to have the continuous improvement. And let me tell you, my friend, in India also, many industrial sectors, in industry it is mandatory, because if you go through those who are associated with industry, उनको पता होगा कि industry they have made it mandatory, because वो उन्होंने अभी आप उनके सभी employees को, right from the operator level to highly paid managerial level, जो MD होगा उनके लिए भी Kaizen concept उन्होंने implement किया है. वो हर साल ये बताते कि भाई you have to do some Kaizen, right? So whatever processes you are dealing with, whatever product you are dealing with, you need to do some sort of improvement, and you need to have either quantitative improvement or qualitative improvement at the end of the year. And they do have the Kaizen competitions as well. Every year they have the Kaizen competitions. I mean, everybody. Now, what this Kaizen is all about? Let me tell you very simple and listener language. जैसे कि मान लो एक ऑपरेटर है, किसी एक मशीन पे काम कर रहा है, तो उनका बॉस उनको कहेगा कि देखो भैया, आज इस मशीन पे आप काम कर रहे हो, since last 1 year you are producing 100 number of devices per day. Now I want from next year onwards, you have 1 year to go, you think on this seriously, regarding the processes, regarding the raw material or whatever, it is up to you. You can do lot of permutation combination, but next year I want 110 devices. Today you are producing 100 devices, next year I want 110. If you don't do it, you will be no more. And this is how it is happening in the industry sector, right? Because if you are not able to provide the improvement, you will be thrown away from the system. Unfortunately, this is not being implemented in academics. Truly speaking, this should be implemented in academics as well. जहाँ पर पूरे हमारे पूरे स्टूडेंट का फ्यूचर पड़ा है, वहां पर हम उतने मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है. Truly speaking, this should be started implementing, this should be started adopting in universities as well. So forget about whether your universities or your college is going to ask you or not. I would request you to do the continuous improvement. You adopt Kaizen in all the, that's why I said you should adopt Kaizen in every walk of your life. It's not only professional, you should have that kind of Kaizen in your personal life as well. And then I would like to request you to read this book. I would like to request you to read a couple of books, because I have gone through this book at least 5 to 6 times. Rich Dad and Poor Dad. This is written by one of the very popular author, Robert Kiyosaki. It talks about the two dad, like Rich Dad and Poor Dad, right? He's telling his story in that book, that I was having two dad. One was highly educated, like he was PhD, he was working as a teacher, he was educated, but he was financially very poor. And on the other hand, his other dad was
like he was not educated at all, right? Kabhi school mein gaye nahi, but he was richest among the like in that city, the city in which he was living, वो पूरे city में सबसे rich dad थे. In fact, real story ये है कि वो जो educated dad थे, he was his dad, and then ये जो rich dad की बात ये किताब में हो रही है, he is that fellow is the dad of his friend Mike. So this is the story, and I'm not going to tell you the entire story, obviously, but there are some takeaway points. I am going to read quickly because this is going to be very, very important for our individual professional life. You can see the takeaway points are: your health is not depends on, sorry, your wealth. I'm talking about wealth is not depend on how much money you earn, but it depends on how much money you keep for you. This is very, very important lesson. Intelligent person hires people who are more intelligent than he is. This is very important. This is very much relevant to our academics too. Like those who are intelligent, they always hire intelligent people. Those who are foolish people, they always hire more than foolish people more than him. Financial intelligence is very, very much needed for having sustainable wealth. This is very, very important. Although unfortunately, this is not happening in our conventional education. We are providing technical education. We don't make them financially literate. As a result of that, most of us are struggling later on. We are having technical knowledge, but we are not financially literate, and that is why we are struggling. That is why the next takeaway point is having only financial genius is not going to be enough to be a successful entrepreneur. You need to have a technical knowledge along with courage. It's not only financial genius, right? So you need, along with financial knowledge, literacy, you need to have a technical knowledge, and you need to be very courageous as well. And last takeaway point is those who can earn the skill to manage the fear are always going to be successful. जो लोग डरते वो कभी भी जीतते नहीं, क्योंकि हमें पता है क्रिकेट में भी जब भी आपको छक्का मारना होता है तो क्रीज छोड़ के आपको आना है. There are some few exceptions for that. Dhoni was one of that. वो क्रीज से ही अपना छक्का उठाता था. But usually you need to leave the crease, then only you can hit the six, right? And then मैंने ये किताब को थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश की. That is why I am referring this book. I am requesting you to read this. In this book, they talks about assets and liability. We know assets always make money. Those who are purchasing assets, they are going to be rich, and those who are purchasing liabilities, they are going to be poor person. That we know. And we always have income statement on which we talked about the sources of income, we talked about the ways of expenses, and we do have balance sheet as well in which we have assets and liability. Now whenever I compare these assets and liability to the academic institution, you can see there are two red square I have given. Those people who are managing their institution efficiently, they can consider students as asset. You can see, because students are going to be products, right? And then because you need to consider them as an asset. Similarly, teachers are going to be asset. That's why, as yesterday also I mentioned, we need to be very careful, very sensible by recruiting teachers, because we don't want them to be liabilities. We want them to be, like assets. Similarly, academic programs, or whatever academic programs we have, those are going to be assets. इसलिए, but unfortunately क्या होता है, ज़्यादातर universities या institution में क्या होता है कि एक authority आती है, they consider academic program as I said, they earn lot of money as well. Authority changes, नए vice chancellor आते हैं, नई authority आती है, they don't believe on that, वो efficiently manage नहीं करते, they close down the program, and then they consider academic program as a liabilities. Similarly, infrastructure, building infrastructure है, technical infrastructure है. So all these student, teachers, academic programs and infrastructure can be considered as assets if you are managing your institution very efficiently. Otherwise, they can be, if you are managing your institution very poorly, those assets can be considered as will be converted into liabilities. Students, अगर आपके पास अगर प्रॉपर मेथोडोलॉजी, टीचिंग पेडागोगी प्रॉपर नहीं है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं होगा, दे आर गोइंग टू बी लायबिलिटी. टीचर्स रिक्रूट आप अच्छे नहीं कर पाओ, दे आर गोइंग टू बी लायबिलिटीज. एकेडमिक प्रोग्राम को आप प्रॉपरली चला नहीं पाओ, दे आर गोइंग टू बी लायबिलिटीज. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास तो है, बट यू आर नॉट अर्निंग मनी, इट बिकम लायबिलिटी, बिकॉज आपके उसके जो मेंटेनेंस है उसी के ऊपर आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आप पैसा कमा नहीं रहे हो. सो दैट बिकम्स अ लायबिलिटी आल्सो. सो यू कैन सी द सेम फोर काइंड ऑफ the assets: student, teacher, academic program. If you are really wise enough, if you are managing your institution efficiently, it can be assets or it can be liabilities as well. And therefore, this is my humble suggestion that you should read this book. I will also advise you to read these two more books, because Awaken Leader in You by Mitesh Khatri and Indu Khatri. The reason why I'm asking you, because हमें like बचपन से आदत लग जाती है कि always we don't want to take the responsibility. Accountability कभी हम लेना नहीं चाहते. आप देखिए, अगर आपका बेटा बेटी मान लो अगर एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं करे, अगर आपने पूछा कि बेटा
क्या तुमने कुछ गलत किया, स्टडी बराबर नहीं की इस साल? तो कहेगा नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मैंने तो सब कुछ सही किया लेकिन वो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या तो वो क्वेश्चन पेपर ही सही नहीं निकाला, या तो असेसमेंट सही नहीं किया, सो ही इज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम थिंग इज ट्रू फॉर अस एज वेल। हमें जब भी हमारे प्रिंसिपल, हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार जब पूछते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट में आपके पास ये सही नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, इज दिस समथिंग रॉन्ग विथ यू, डू यू नीड टू इम्प्रूव समथिंग, तो हम कहेंगे नहीं सर मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरे सबॉर्डिनेट अच्छे नहीं है। सो लाइक एवरीबody try to blame other, right? Now this particular book talks about how to take the responsibility, right? How to take the leadership in your wherever you are. Leadership doesn't mean that you will be leading institution. Leadership means wherever you are, you need to consider as a leader, and you need to take the responsibility. You need to own the responsibility, and that is why I this is my humble submission. If you really want to continuous improvement, you need to read this book as well. And as far as the personal life is concerned, you see, if you want to be successful in your personal professional life, you need to be successful in your personal life as well. ऐसा कभी भी नहीं होता. Those who are failure in their personal lives, they are bound to be failure in professional life as well. जो घर में होता है उसी का रिफ्लेक्शन हमारे ऑफिस में भी होता है. That is why you need to be very successful in your personal life. उसके लिए ये जो किताब है, I would advise you to go through this book, the 5 love languages. This is a wonderful book. It talks about like love language of your spouse. It talks about the love language of your children, talks about the love language of your parents. I mean, whenever you are working like as in a family as a leader, you need to understand the love language of your parents, love language of your spouse, love language of your children. Unless you understood this, unless you understand this, you will not be able to satisfy their expectations, fulfill their expectations, right? And if you are like good leader in your home, in your house, you can be a good leader in your professional life as well. And therefore your personal life is going to be very, very important. We need to be very, very careful about our personal life. We need to be very happy. Then only we can improve substantially in the professional life. So this is what my suggestions is going to be. Now let us talk about the publication. Now as I mentioned earlier, publication is going to play very crucial role. In API, the publications are very, very important. क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादातर, कल भी मैंने कहा कि ज्यादातर कॉलेजेस में, ज्यादातर इट्स नॉट ओनली कॉलेजेस, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि हम लोग वी आर नॉट सीरियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर पब्लिकेशन. कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के आप 10 थेसिस अगर आप निकालोगे randomly, you will find that only 20 to 30% thesis, only 2 to 3 thesis is going to have quality publications, जो real quality publications है. उसका रीजन मैं बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने, because I have gone through like जैसे मैंने बताया ना कि मुझे आपको बताऊं, एक एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ रखना चाहता हूँ. When I was in Australia in 2006, वहां पर मैं विजिटिंग फेलो था. तो I was sharing my room with one of the PhD scholar. तो PhD scholar का देखा मैंने, he was about to submit his thesis. मैंने कहा out of curiosity, मैंने कहा कि यार बताओ मुझे thesis आपका. thesis देखा मैंने, I have not seen single publication. So I was surprised कि यार ये तो यहाँ पर भी होता है. ऑस्ट्रेलिया में without publication thesis submit करते. So out of curiosity I asked him, like have you not published single paper till this date? He said no. I have submitted patents, right? I have submitted 3 to 4 patent he was talking about, but since I have submitted patent, I cannot go ahead for publication. During those days things were different. Nowadays, now you can go ahead and submit your proof of concept to begin with, and then you can go ahead for publication as well. तो वहां पर क्या हुआ करता था कि अगर आप पेटेंट अगर पब्लिश करते हो, सबमिट करते हो, तो पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं था. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दे वर हैविंग. बट इन इंडिया मैंने देखा कि देयर आर मेनी स्टूडेंट कि जो, जैसे मैंने कहा कि 20-30% थीसिस तो होते हैं कि जो बड़े जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है उसमें 20-30% ऐसे होते हैं कि दे आर हार्ड वर्किंग, जेन्युइन, बट दे आर नॉट अवेयर. Just because of lack of awareness, they are not publishing their data. And 30-40% ऐसे लोग हैं कि आप उनको सुधार नहीं सकते. आप कुछ भी करें, वो बिल्कुल नहीं सुधारेंगे, उनको सुधारने का कोई मतलब भी नहीं. लेकिन 20-30% जो जेन्युइन लोग हैं, जो अवेयरनेस के वजह से जो पिछड़ गए हैं, उनको अवेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई थॉट लेट मी टेल यू द क्वालिटी पब्लिकेशन.
इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में सोचते, देयर आर मेनी पीपल दे डोंट हैव गुड ओपिनियन अबाउट इम्पैक्ट फैक्टर। वो कहते कि यार ये क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल रहा तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ ह्यूमैनिटीज के ऐसे जर्नल है इंडिया में कि जिनका अभी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, बट दे आर रेफरेड जर्नल, तो वो क्लेम करते देखो ये फलाना फलाना जर्नल है, ये इसका तो इम्पैक्ट फैक्टर नहीं, लेकिन स्टिल इट हैज अर्न द रेपुटेशन। आई एग्री, देयर आर सम जैसे कि इकोनॉमिकल वीकली है, ऐसे कुछ जर्नल्स है सोशल साइंसेस के, दे डोंट हैव इम्पैक्ट फैक्टर बट दे हैव अ गुड रेपुटेशन। बट सवाल ये है कि आपके पास ऑप्शन तो है ना, जब तक आपके पास ऑप्शन है, व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट ऑप्शन? क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर की जर्नल के ऑप्शन आपके पास है, सो यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन ना। प्रॉब्लम ऐसा है कि देखिए डिफरेंस कैसे मैं बताऊं, इफ यू आर already have a credential, then wherever you publish is not going to matter too much। लेकिन आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है, आप शुरुआत के कार्यकाल में आपके लाइफ करियर के, तो आपको तो ऐसे जर्नल में डेटा पब्लिश करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप बिल्ड करोगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको देखना समझना पड़ेगा कि इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है मतलब क्या है, क्यों वो इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, जिसका ज्यादा होता है अच्छे जर्नल्स होते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, आप देखेंगे कि मान लो 2020 का अगर इम्पैक्ट फैक्टर हमें निकालना है तो व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ए बाय बी। What is denominator? Denominator मैं बताना चाहूंगा, denominator is the total number of citable items published by that journal in 2018 and 19। मतलब अगर 2020 का अगर इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो पिछले 2 साल में उस जर्नल ने कितने पेपर्स, कितने आर्टिकल पब्लिश किए। मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे एक जर्नल है साल के 12 इश्यूज निकालते हैं और हर इश्यूज में 12 आर्टिकल होते हैं, राइट। जर्नल 12 इश्यूज निकालते हैं, हर इश्यूज में 12 आर्टिकल है, तो 12 मल्टीपल ऑफ 12 एक साल में होंगे 144 आर्टिकल्स, तो 144 2 साल में कितने होंगे 288, सो 288 विल गोज टू द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में क्या है देखिए, A is the numerator, number of times article published in 2018 and 19 were cited by index journal। अभी पहले तो हमें साइटेशन का ये भी समझना पड़ेगा। साइटेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मैं रिसर्च कर रहा हूँ शुरुआत के कार्यकाल में, अभी मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट सेट करना है, तो रिसर्च करते समय आई एम गोइंग टू डू द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब बाकी लोगों ने क्या किया, तो मैं देखूंगा कि XYZ जर्नल, ABCD जर्नल, उनके जर्नल, वो जर्नल में बाकी रिसर्च स्कॉलर ने क्या किया, एंड देन आउट ऑफ दोस लाइक आई मे बी गोइंग थ्रू 50 60 100 मे बी 100 रिसर्च पेपर, और उसमें से कुछ 10-15 गिने चुने इंपॉर्टेंट जो जिसका इम्पैक्ट अच्छा है ऐसे आर्टिकल्स में चूज करूंगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू फॉर्मुलेट माय ओन hypothesis and set of objectives and methodology, right? And then I'm going to do some experiment, I will be having research, and then I will be getting some data with me, and then at the end I'm going to submit for publication। जब मैं publication के लिए जाऊंगा, then I'm going to refer कि this concept I got it from this and this, you have to cite that, right? This is what the citation is। Now question is index journal। अब देखिए non index journal बहुत सारे होते हैं, there are many non index journal। दिस इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर अगर इंडेक्स जर्नल का है तो ही उसका थॉमसन रूटर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले उसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते थे, ICISI, देन लेटर ऑन इट वाज थॉमसन रूटर, नाउअडेज इट इज बीइंग टेकन केयर बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, राइट। थॉमसन रूटर भी अभी क्लैरिवेट एनालिटिक्स देख रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि थॉमसन रूटर क्या है। तो थॉमसन रूटर के जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं वो सभी इंडेक्स जर्नल होते हैं। अब इंडेक्स जर्नल क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में। तो मान लो जितने भी इंडेक्स जर्नल, जितने भी आपके 288 आर्टिकल्स थे, उसके सभी आर्टिकल को एक बार साइटेशन मिला है इंडेक्स जर्नल में, तो आपका न्यूमरेटर में 288 आ गया, डिनोमिनेटर में 288 आएगा, तो क्या होगा आपका इम्पैक्ट फैक्टर 1। आपका डिनोमिनेटर अभी फिक्स है लेकिन न्यूमरेटर कैन बी लेस और मोर। अगर 288 मान लो एक बार भी साइटेशन मिला नहीं तो उसका 0 आ जाएगा, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर निकलेगा ही नहीं। आप अगर देखिए कि सभी आर्टिकल को 2 बार साइटेशन मिला है, 288 मल्टीप्लाइड बाय 288 डबल हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर 2 होगा, मतलब मोर द साइटेशंस मोर वुड बी द इम्पैक्ट फैक्टर। सो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब उसके साइटेशन ज्यादा है, उसके पढ़ने वाले ज्यादा है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन इज, मैं बाद में ये भी बताना आगे जाने से पहले H&S, कारण आजकल जो है आप अगर कहीं पर भी जाओगे रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका H&S क्या है। टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस आर नॉट गोइंग टू मैटर, आपको बताऊं, क्योंकि आपके टोटल कितने भी हो सकते, लेकिन H&S क्या है, व्हाट इज H-index? H-index is an index that attempt to measure both productivity and impact of the published work of research scholar, right? तो अभी प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट कैसे करेगा, जैसे कि मान लो मेरे 100 पेपर है, आपने सुना होगा कि मेरे 133 पेपर है। आपने अगर देखा कि मेरा H-index जो है गूगल स्कॉलर का 32 है,
I'm going to have a comparative seat as well, and Scopus का 27 है. So what does it is 32 means? 32 H index is 32 means out of those 100 articles, out of those 133 articles, 32 articles got minimum 32 citations. So आपके 32 क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपके मिनिमम कितने जर्नल्स है जिसको कम से कम वो साइटेशंस मिले हैं, राइट? उससे ज्यादा मिल सकते लेकिन मिनिमम उतने साइटेशन आपको मिलने चाहिए. तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट आपके नंबर कितने भी होंगे, साइटेशन नहीं मिलेंगे तो आपका एच इंडेक्स सही नहीं होगा. I10 का ये है कि आपको मिनिमम, जैसे मेरा I10 है 88, इसका मतलब आउट ऑफ दोस 88 articles got minimum 10 citation. ज्यादा हो सकते लेकिन minimum 10 citation. So that is why this I10 and H index is going to provide you the productivity of and impact of your published work. And I was talking about the index. You can see these are the indices. अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी आपके ऑडियंस में अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के कुछ टीचर्स होंगे तो वो ऑब्वियसली अपने मन ही मन में कर रहे होंगे कि नहीं ये तो साइंस के लिए है, सोशल साइंस के लिए तो ये स्कोपस इंडेक्स होती ही नहीं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल साइंस में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसका स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में जर्नल नहीं है. आप देखिए सबसे पहला रो देखिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स. ये क्या है? डिसिप्लिन क्या है? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी. डिस्क्रिप्शन क्या है? वेब ऑफ साइंस. आप देखिए ये सभी थॉमसन रूटर जर्नल है. आप प्रोवाइडर देखिए लास्ट कॉलम में थॉमसन रूटर. तो इसका मतलब क्या है? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के भी बहुत सारे जर्नल्स है जो वेब ऑफ साइंस में है. दूसरा है इंडियन स्टैटिस इंडेक्स, ये भी अच्छा है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है. दिस इज ओनली फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, बट इंडियन स्टैटिस इंडेक्स जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है. साइंस स्टैटिस इंडेक्स जो है ये भी वेब ऑफ साइंस का है, थॉमसन रूटर इसको प्रोवाइड करता है, ये ओनली साइंस के लिए होता है. लेकिन स्कोपस देखिए, स्कोपस इज मल्टी डिसिप्लिनरी. स्कोपस इज मल्टी डिसिप्लिनरी. इसमें सभी सब्जेक्ट के जर्नल्स है, सभी सब्जेक्ट के जर्नल्स है. देन अगेन सोशल साइंस के लिए और भी नीचे सोशल साइंस स्टैटिस इंडेक्स, एक ओनली, दिस इज ओनली फॉर सोशल साइंसेस, ये भी वेब ऑफ साइंस डील करता है. लास्ट में देखिए स्प्रिंजर, ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है. इसका मतलब दीज आर द इंडेक्स जर्नल, these are the index journal. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि there are many index journal for all the discipline, all the including languages. Let me tell you that आपको मराठी, हिंदी, संस्कृत, पाली, इस लैंग्वेज के लिए लिमिटेड ऑप्शंस है, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव जर्नल. दे डू हैव स्कोपस इंडेक्स जर्नल एज वेल, राइट? एंड देन आगे चल के मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा व्हाट इज स्कोपस. स्कोपस इज एल्सवेयर एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन डेटाबेस, स्टार्टेड इन 2004. एंड देन जैसे मैंने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी है, ओके, बुक सीरीज भी निकालता है, जर्नल्स भी निकालता है. देन वेब ऑफ साइंस इज अगेन एज आई मेंशन अर्लियर, पहले उसको वेब ऑफ नॉलेज हुआ करता था. Institute of Scientific Information, ISI, to look up that. Now it is maintained by Clarivate Analytics. ये भी multidisciplinary है. There are many journals they are offering. ResearchGate a kind of social networking site है. यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं कुछ बुलेट पॉइंट आप देखिए कि RG it is impossible to get high RG score solely through publications, क्योंकि RG score ऐसा है कि आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव होना पड़ता है. अगर मान लो आप इंटरेक्टिव नहीं है तो आपका आरजी स्कोर अच्छा नहीं होगा. इसलिए ओनली एकेडमिक रेपुटेशन पे आपका आरजी स्कोर अच्छा नहीं होता. दैट इज व्हाई लेट मी टेल यू लास्ट पॉइंट देखिए, आरजी स्कोर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए academic indicator for academic reputation. The reason is because even though although you could be having good academic reputation, but आपका जो है आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा नहीं हो तो आप इसमें स्कोर अच्छा नहीं आएगा. एंड देन गूगल स्कॉलर भी एक डेटाबेस है, लेकिन गूगल स्कॉलर ऐसा है कि नॉन इंडेक्स जर्नल को भी वो सपोर्ट करता है. दैट इज द वन मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट. 2004 से शुरू हुआ है. तो मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूंगा, मेरा खुद का कंपैरिजन है ये. तो टू बिगिन विद मैं आपको कहूंगा कि एटलीस्ट गूगल स्कॉलर में आपके साइटेशंस नंबर आने चाहिए. स्कोपस और वेब ऑफ साइंस ये बड़ी बात है, लेकिन सबको मैंडेटरी है, क्योंकि कल मैंने बताया आपको कि NIRF में आपको गूगल स्कॉलर बिल्कुल नहीं मानता. दे आर कंसिडरिंग ओनली स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस जर्नल. लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा. आप देखिए मेरे खुद के नंबर है, गूगल स्कॉलर में नंबर देखिए, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर में मेरे 211 है, क्योंकि इसमें कुछ नॉन इंडेक्स जर्नल भी लेता है. पर स्कोपस ये नॉन इंडेक्स जर्नल नहीं लेता, वेब ऑफ साइंस नॉन इंडेक्स जर्नल नहीं लेता. स्कोपस में मेरे 133 है, वेब ऑफ साइंस में 119 है, क्योंकि कुछ जर्नल जो है वेब ऑफ साइंस सपोर्ट नहीं करता. Number of citations देखिए, on Google Scholar I have got today, this is latest status, I have got 3023, but on Scopus we can see 2257, Web of Science 1929. Each index देखिए
गूगल स्कॉलर में मेरा 32 है, स्कोपस में 27 है, वेब ऑफ साइंस में 26 है। आप अगर ये तीनों का कंपैरिजन करोगे आप पाओगे कि वेब ऑफ साइंस इज वेरी हाई, देन उसके नीचे स्कोपस रहेगा और गूगल स्कॉलर सबसे कम रहेगा। तो इसीलिए एनआईआरएफ में एंड इवन नैक में भी अगर पीजी कॉलेज आप रन करते हो, यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, तो दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस जर्नल ओनली। गूगल स्कॉलर का वो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन टू बिगिन विद एटलीस्ट आपके पास गूगल स्कॉलर के तो नंबर होने चाहिए, सो दैट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस। अब मैं जब आप जर्नल की बात कर रहे हो तो इट्स नॉट ओनली वन पैरामीटर, यू नीड टू कंसीडर 4 डिफरेंट पैरामीटर। आप जब अच्छे जर्नल की बात कर रहे हो, जब भी आप जब भी डेटा आपके पास है एंड इफ यू रियली वांट टू पब्लिश दैट इन गुड जर्नल, you need to consider 4 different parameters of good journal, right? These are, we call it a journal matrix, right? What are those? सबसे पहला है साइट स्कोर। साइट स्कोर क्या है? जैसे मैंने इम्पैक्ट फैक्टर बताया, इम्पैक्ट फैक्टर क्या देखता है? पिछले 2 साल के साइटेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं वो जाएगा न्यूमरेटर में, और साइटेशंस कितने मिले हैं वो जाएगा, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस, टोटल नंबर आर्टिकल गोज टू द डिनोमिनेटर एंड साइटेशन जो है न्यूमरेटर में जाएगा 2 साल का। साइट स्कोर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखता है, मतलब इसका ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। सिम कैलकुलेशन सेम है, पिछले 3 साल में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए जो वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और पिछले 3 साल में कितने साइटेशन मिले वो जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस इज बेटर देन इम्पैक्ट फैक्टर। देन दूसरा है 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं कि 1 साल में तो अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, लेकिन कभी भी इम्पैक्ट फैक्टर में थॉमसन रूटर की बात कर रहा हूँ या क्लैरिवेट एनालाइट की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी कोई इम्पैक्ट फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देयर आर मेनी नॉन इंडेक्स जर्नल which are very substandard, they don't have, they are claiming that their impact factor is 10, 15, 19, बिल्कुल नहीं। आप उनके वेबसाइट में देखिए, अगर क्लैरिवेट एनालाइट्स और थॉमसन रूटर है, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस है, तो ही वो ऑथेंटिकेटेड होगा, अदरवाइज वो फेक होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर देखना पड़ेगा। देन थर्ड पैरामीटर है एचजेआर, साइमागो जर्नल रैंक। ये क्या करता है? इट्स नॉट ओनली, वी कैन सी दिस टेक अकाउंट ऑफ बोथ नंबर्स एज वेल एज द प्रेस्टीज, मतलब आपके जो जर्नल के आर्टिकल है कहां पर पब्लिश हो रहे हैं, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो आप काम कर रहे हो, आप जिस कॉलेज में काम कर रहे हो, आपको कौन अप्रिशिएट कर रहा है? आपके कलीग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑन अदर हैंड आपके प्रिंसिपल आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा वेटेज देंगे आपके प्रिंसिपल ने आपको अगर अप्रिशिएट किया तो दैट इज व्हाई ये जो साइमागो जर्नल रैंक क्या डिसाइड करता है, आपके कितने पब्लिकेशंस है, कितने साइटेशन मिले हैं और कहां पर मिले, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड स्नीप क्या देता है? स्नीप इज अगेन लाइक सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जर्नल में कुछ आर्टिकल को तो अच्छे साइटेशन मिलते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल है उनको साइटेशन मिलते ही नहीं। तो व्हाट स्नीप इज गोइंग टू टेक केयर? स्नीप इज गोइंग टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल दोस, मतलब सभी जर्नल के आर्टिकल जो है जिनको कम है ज्यादा है उसको नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मलाइज करके वो इम्पैक्ट फैक्टर निकालेगा। सो इफ यू आर कंसीडरिंग दिस 4 different parameters, then obviously you will be very much comfortable, you will be able to select good journal and you will be able to publish data in good journal and you will be having lot of credential and recognition across the globe. Recognition आपको आपकी सिटी में नहीं, आपके राज्य में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, you need to have a recognition across the globe. आपको अगर पोस्टडॉक फेलोशिप पे जाना है, अगर यंग कोई फैकल्टी मेंबर है, इफ यू वांट, बिकॉज़ देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, आप पोस्टडॉक के लिए जा सकते हो, विजिटिंग फेलोशिप आपको मिल सकती है। अगर आप अगर चाहते हैं कि आपको क्रेडिबिलिटी मिले, आपका क्रेडेंशियल वो रिकॉग्नाइज करे, तो आप ऐसे जर्नल में डेटा पब्लिश करोगे। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ड्यूरिंग योर पीएचडी, इवन आफ्टर पीएचडी, आप 2 से 3 अगर ऐसे टाइप के जर्नल में डेटा पब्लिश करोगे, तो आप पोस्टडॉक के लिए भी जा सकते हो, विजिटिंग के लिए भी जा सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको कोई लिंक की जरूरत नहीं है। इफ यू आर दिस योर एकेडमिक बैटेज इज गोइंग टू बी ओनली योर क्रेडेंशियल एंड दिस व्हिच इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड। अभी जैसे कि मैं आपको यूजीसी लिस्टेड जर्नल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले जो है 4 ग्रुप हुआ करते थे। ग्रुप ए में स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के जितने भी थे सभी ग्रुप ए में उन्होंने डाला था। ग्रुप बी में था कि जर्नल क्वालिफाइड आफ्टर एनालिसिस एज पर द प्रोटोकॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजीसी लिस्ट, मतलब उनका जो यूजीसी लिस्ट था एग्जिस्टिंग, तब की पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो तब वो क्या उन्होंने अपना नया प्रोटोकॉल लगाना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग दोस जर्नल्स, तो वो ग्रुप बी में आते थे। ग्रुप सी जो है स्पेसिफिकली सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था। एंड ग्रुप डी जो है नए जर्नल जो सबमिट कर रहे थे लोग, उनके लिए किया था। बट लेटर ऑन दे हैव मर्ज इनटू 2 ग्रुप ओनली ग्रुप ए वुड बी
लाइक वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस, वो सभी वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस के सभी जर्नल जो है ग्रुप ए में आते हैं यूजीसी के लिस्ट में, एंड बाकी जो तीनों कैटेगरी था उसका सिंगल कैटेगरी बनाया गया. अभी नाउ देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, राइट. एंड एज फार एज द केयर यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न, बिकॉज ये केयर जो है ना, आपको पता होगा कि केयर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स इस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सिंस जनवरी 2019. देयर आर 4 केयर यूनिवर्सिटीज. नॉर्दर्न रीजन में आप बिलोंग करते हो तो जेएनयू है, वेस्टर्न रीजन के लिए एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, सदर्न रीजन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, एंड ईस्टर्न के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी है. योगेश जी जरा एक स्क्रैच निकालिए ना, किसने तो भी स्क्रैच स्क्रीन पे उसको जरा क्लीन करिए ना. एंड देन आप अगर किसी जर्नल की वेबसाइट पे अगर जाओगे, दिस इज एक एग्जांपल मैंने बताया कि सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स बी, वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड जर्नल. आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए साइट स्कोर 6.27, इम्पैक्ट फैक्टर 6.33, ये थॉमसन रूटर. आप ये जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर, ये तो लाइव नहीं है, मैंने स्नैपशॉट लेके लिया है, लेकिन आप जर्नल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो आपको पता चलेगा इम्पैक्ट फैक्टर किसका है. यहाँ पर या तो आपको थॉमसन रूटर दिखना चाहिए, या तो क्लैरिवेट एनालिटिक्स दिखना चाहिए, तो ही वो थॉमसन रूटर का होगा. ये जो बुलेट यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे आपको कहीं दिखाई देगा फायर इम्पैक्ट फैक्टर, स्नीप, साइमागो इम्पैक्ट फैक्टर एज वेल, साइमागो जनरल रैंक आल्सो, एचजीआर फैक्टर आल्सो. ये सभी आपको हर जर्नल की वेबसाइट में, जो 4 फैक्टर मैंने बताए, सभी जर्नल के वेबसाइट पे आपको दिखाई देंगे. अगर वो नहीं दिखाई देती, इसका मतलब वो जर्नल अच्छा नहीं है, रेप्यूटेड अच्छा नहीं है, उसका इंडेक्सिंग नहीं है. So this is all about the quality publication. Now let us switch over to the eligibility criteria for various stages of teaching position under SCAS. अब ये जो है, मैंने जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि गवर्नमेंट यूजीसी का जो सर्कुलर था, रेगुलेशन था 18 जुलाई 2018 का. उसके बाद में जो है 8 मार्च 2019 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रिजोल्यूशन है. वैसे ही रिजोल्यूशन अगर बाकी स्टेट के कोई लोग अगर वेबिनार में होंगे तो दे मस्ट बी हैविंग द रिजोल्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, एंड ऑफ कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में हम काम करते हैं उनके भी स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस हमें देखने पड़ते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स इतना पक्का है कि जो यूजीसी गाइडलाइन और जीआर में है वो छोड़कर ऑर्डिनेंस में कुछ भी नहीं आ सकता. मतलब अपने मन का कुछ भी नहीं हो सकता, उसको हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते, उसको खाली क्लैरिटी हम बढ़ा सकते हैं. दैट इज व्हाई द ऑर्डिनेंसेस एंड स्टैट्यूट्स आर देयर. कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कंपैरेटिव चार्ट दिया है, 6 पे और 7 पे का कंपैरिजन. 6 पे में जैसे कि 6 एजीपी जो हुआ करता था, 6000 to 6000 एजीपी, दैट इज इक्विवेलेंट टू लेवल 10 इन 7 पे. 7000 एजीपी इक्विवेलेंट टू लेवल 11, 8000 एजीपी इक्विवेलेंट टू लेवल 12. देन एसोसिएट प्रोफेसर जिसका 9000 एजीपी हुआ करता था, दैट इज इक्विवेलेंट टू लेवल 13A. प्रोफेसर जिसका 10,000 एजीपी हुआ करता था, दैट इज इक्वल टू लेवल 14. एंड जो सीनियर स्केयर प्रोफेसर जो है उनका 12,000 हुआ करता था, दैट इज इक्वल टू लेवल 15. सो दिस इज हाउ. सो नाउ इन 7 पे वी टॉक्ड अबाउट लेवल, वी डोंट टॉक्ड अबाउट एजीपी. तो अभी इस ऑडियंस में सबसे ज्यादा कॉलेज के लोग हैं, इसलिए मैंने कॉलेज से शुरुआत की. करियर एडवांसमेंट स्कीम फॉर कॉलेज टीचर्स, ये सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लेवल 10 टू लेवल 11. अब लेवल 10 टू लेवल 11 मतलब 6000 एजीपी टू 7000 एजीपी, यहाँ पर भी मैंने दिया है. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर आपके पास पीएचडी है तो आप 4 साल में आप लेवल 11 में जा सकते हो. पीएचडी अगर आपके पास है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आपके पास एमफिल है या पीजी डिग्री है, आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे एलएलएम है, एमटेक है, एमयूएससी है, एमडी है, तो फिर भी आप 5 साल में जा सकते हो. अगर आपके पास पीएचडी नहीं है या ये एमफिल नहीं है या पीजी डिग्री इस प्रोफेशनल कोर्सेज से नहीं है, तो देन यू रिक्वायर 6 ईयर. इसका मतलब क्या है? पीएचडी है 4 साल, एमफिल है 5 साल. अगर आपके पास एमफिल पीएचडी नहीं है तो आपके 6 साल लगेंगे आपको लेवल 11 में जाने के लिए. Now, what are the other requirements? You need to have one orientation program. This is mandatory because you just cannot get rid of anything of this orientation program. क्योंकि orientation program हम नए teachers के लिए बड़ा important होता है, क्योंकि ज्यादातर multidisciplinary type के lectures यहाँ पर होते हैं, इसलिए orientation program is going to be mandatory. And then, as far as refresher course is concerned, there are some options. Either you do one refresher course of research, refresher course in research methodology, typical very conventional refresher course in the respective subject, or research methodology refresher course. और अगर आपको पता होगा कि अगर ये आप नहीं करते हो refresher course, तो then any two of the following.
मतलब इसमें से आपको 2 करना पड़ेगा। अगर रिफ्रेशर कोर्स 1 या तो ये 2 करना पड़ेगा। मतलब ये कितना है, 1 वीक के है। 1 वीक मीन्स 5 डेज। मतलब अगर आपके 2 वीक के प्रोग्राम, क्योंकि आज का रिफ्रेशर प्रोग्राम भी अभी छोटे हो गए अभी, बिकॉज MHRD स्टार्टेड। सर हेलो, यस, सर तुम्ही पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करा सर. ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लेम. सर त्या आपण जे स्क्रॅचेस आहेत ना त्या रिमूव्ह करतोय, त्याच्यासाठी ओके तुम्हाला ओके पुन्हा एकदा करावं लागेल. ओके, डू नो इश्यू. Okay, is it visible? Yes sir, yes. Okay. तो I was talking about this रिफ्रेशर प्रोग्राम, राइट. आपका अगर रिफ्रेशर प्रोग्राम अगर 2 वीक का है, क्योंकि मैं बता रहा था कि HRDC में अभी रिफ्रेशर प्रोग्राम भी काफी कॉम्प्रेस हो गए. 2 वीक के प्रोग्राम होते, 2 वीक मतलब 10 डेज के होते, वीक्स मतलब. अगर आप 5 डेज का अगर प्रोग्राम कर रहे हो तो देन यू नीड टू हैव टू प्रोग्राम्स. अगर 5 डेज का आप कर रहे हो, 1 वीक का कर रहे हो तो. लेकिन उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि आप सिलेबस वर्कशॉप किस टाइप के हो सकते हैं. सिलेबस अपग्रेडेशन का भी हो सकता है, ट्रेनिंग ऑन टीचिंग लर्निंग में हो सकता है. सो दे हैव ऑलरेडी मेंशन, राइट. मूक कोर्स से रिलेटेड भी आप ई कंटेंट डेवलपमेंट वाला भी कोर्स आप कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल. अगर वो 2 वीक का है तो 1, एंड 1 वीक का है तो ऑब्वियसली 2 होगा. एंड इन एडिशन टू दैट, जैसे कि रजिस्टर साहब ने पहले ही बताया कि अभी जो है अपार्ट फ्रॉम दिस रिसर्च, अपार्ट फ्रॉम द लेंथ ऑफ सर्विस, ये जो है ना, he or she gets satisfactory good grade, this is very very important. मैं ये बताना चाहता था कि कोई टीचर अगर कॉलेज में काम ना भी करता हो तो भी उसको कोई भी प्रिंसिपल गुड, मतलब सेटिस्फैक्टरी भी नहीं, उनको गुड ही देते. मैंने कभी देखा नहीं कि वो मतलब नॉन सेटिस्फैक्टरी या सेटिस्फैक्टरी किसी को देते हुए. सभी लोग गुड ही देते. आप कुछ भी करो, कुछ करो या मत करो, आपको गुड ही मिलेगा. ऐसे बहुत गिने चुने टीचर होंगे या जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट टीचर होंगे कि उनको जानबूझ के नहीं दिया जाता, बट ज्यादातर लोगों को यहाँ तकलीफ नहीं होती, राइट. This part I'm not going to repeat because this part I will be telling you at the end of this presentation, right. And then the second है level 11 to level 12. अब देखिए, मैं I'm talking about college, right. ये यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अलग प्रावधान होते हैं, ये कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं. Whenever we are talking about level 11 to level 12, assistant professor we have completed 5 years. मतलब आपको level 11 में 5 साल जिन्होंने complete किया, and any two of the following, right. मतलब ये जो कोर्सेज जो पहले मैंने बताया वो उसी टाइप के कोर्सेज, 2 कोर्सेज करने हैं आपको. वहां पर एक ओरिएंटेशन, तब आपको 10 से 11 आने के लिए एक ओरिएंटेशन, एक रिफ्रेशर. यहाँ जो है आपको 5 साल की सर्विस, वहां पर भी 6, 5 और 4 सर्विस है. यहाँ पर 5 साल मैंडेटरी है. एंड देन any 2 courses 2 वीक के अगर है तो 2 कोर्सेज होंगे. अगर 8 वीक का है तो वो 2 मतलब 2 के बजाय 4 कोर्सेज करने पड़ेंगे. मतलब 1 वीक के कोर्स कर रहे हो तो इन प्लेस ऑफ 1 कोर्स यू विल हैव टू डू 2 कोर्सेज. मतलब 2 कोर्सेज के बजाय आपको 4 कोर्सेज करने पड़ेंगे. और कैश प्रमोशन का ये जो क्राइटेरिया नीचे का बताया, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर एवरीबॉडी. देन लेवल 12 टू 13A मतलब ये एसोसिएट प्रोफेसर का है. तो यहाँ पर लेकिन आपको पीएचडी होना जरूरी है. मतलब कॉलेज में आप लेवल 12 तक विदाउट पीएचडी जा सकते हो, लेकिन अगर लेवल 13A को जाना है तो यू नीड टू हैव अ पीएचडी. असिस्टेंट प्रोफेसर हु हैव कंप्लीटेड 3 years, मतलब लेवल 12 में आपको 3 साल सर्विस चाहिए. एंड देन पीएचडी मैंडेटरी. एंड देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो है जो रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, पहले मैंने बताया वो एक करना है. पहले जो है 2 करने हैं. उससे पहले वाला स्टेज जो है 12 में आने के लिए आपको 2 करने हैं, लेकिन 12 से 13A में आने के लिए आपको एक ही रिफ्रेशर कोर्स करना है. अगर वो 1 वीक का है, 2 वीक का है तो 1 वीक के है तो 2 करने पड़ेंगे. एंड देन 13A टू 14 मतलब एसोसिएट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बन रहे हो. यहाँ पर जो है फिर से एसोसिएट प्रोफेसर में मतलब 13A में आपको 3 साल निकालने हैं. एंड पीएचडी इज मैंडेटरी हियर. यहाँ पर भी पीएचडी मैंडेटरी है.
यहाँ पर भी PhD मैंडेटरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल. अभी आप देखिए कि अभी जो है यहाँ पर थॉमसन रूटर जर्नल नहीं पूछे गए, वो थॉमसन रूटर आगे आगे पूछ रहे हैं. यहाँ पर जो है आपके UGC के जो अभी का लिस्ट है उसमें अगर लिस्टेड जर्नल है उसमें 10 पब्लिकेशन आपको मैंडेटरी है. एंड यू नीड टू हैव अ 110 रिसर्च स्कोर. ये यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली UGC गाइडलाइन में भी कंफ्यूजन है, स्टेट गवर्नमेंट के GR में भी कंफ्यूजन है, और पता नहीं हमारे यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में भी एज इट इज कॉपी हुआ है. आपकी यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं, यहाँ पर गलती है एक्चुअली, लेकिन वो पता नहीं इसमें अलग अलग टाइप का मिस इंटरप्रिटेशन है. And I'm going to tell you later. यहाँ पर देखिए नंबर ध्यान में रखिए, आपको प्रोफेसर बनना है तो 110 आपको API स्कोर चाहिए, राइट. एंड देन दिस इज फॉर यूनिवर्सिटी टीचर, राइट. फॉर यूनिवर्सिटी टीचर एज फार एज लेवल 10 to 11 इज कंसर्न इट इज सेम, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा. 6000 to 7000 में एज इट इज है. लेकिन 10 से 11 अगर आना है आपको, सॉरी 11 से 12 अगर आना है तो यहाँ पर PhD मैंडेटरी है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. आप अगर कॉलेज में हो तो आपको PhD मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपको 11 से 12 में आने के लिए PhD इज मैंडेटरी. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. दिस इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम एज दैट ऑफ कॉलेज. यहाँ पर 12 से 13A के लिए अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, 4 और 5 जो है एडिशनल है. व्हाट इज 4 and 5? 4 इज मिनिमम 7 पब्लिकेशन. मतलब आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, आपको पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन API स्कोर के लिए जो चाहिए वो चाहिए. लेकिन यहाँ पर कितने मिनिमम 7 पब्लिकेशंस आर मैंडेटरी. एंड एविडेंस ऑफ गाइडेड एटलीस्ट 1 PhD स्टूडेंट. ये 4 और 5 जो है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपको अगर एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बनना है. सैलरी सेम है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हो तो आपके पास 7 पब्लिकेशन मिनिमम जरूरी है और एविडेंस ऑफ गाइडेड मतलब एक कम से कम एक PhD आपने गाइड करना चाहिए. And as far as professor is concerned, again serial number 4 is additional, right? So evidence of having successful guided doctoral student. मतलब आप कॉलेज में प्रोफेसर बन रहे हो तो आपके पास PhD स्टूडेंट नहीं भी हो तो चलता, लेकिन आप if you are in the university then at least you should have at least 1 or 2 PhD स्टूडेंट. मतलब कुछ तो PhD स्टूडेंट चाहिए, बाकी सभी प्रावधान जो है सेम है. यहाँ पर भी देखिए 5 नंबर का पॉइंट 110 रिसर्च स्कोर एज पर अपेंडिक्स 2 टेबल 2. अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा. यहाँ पर देखिए आप ध्यान में रखिए कि आपको प्रोफेसर बनना है, 13A से 14 में जाना है तो आपको 110 API स्कोर चाहिए. यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि ये आपके टोटल लाइफ स्कैन का, आपके पूरे करियर का है. यहीं पर मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है सब तरफ. 14 से आपको 15 में आना है. दिस इज ओनली फॉर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये खाली यूनिवर्सिटी के लागू होता है. तो यहाँ पर कितनी चाहिए? 14 में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड 10 पब्लिकेशन चाहिए. दीज आर ओनली द मैंडेटरी कंडीशंस फॉर getting you promoted for senior professor scale. And but this is applicable only for university, कहीं पर भी नहीं. पहले ये नहीं हुआ करता था. पहले आपके पास जो परमानेंट मतलब सैंक्शन प्रोफेसर के पोस्ट थे उसके 10% ही प्रोफेसर सीनियर स्केल में जाते थे. बट नाउ इट इज ओपन टू एवरीबडी. नाउ जैसे कॉलेज में, जैसा जिसलिए मैं कहता हूँ ना कि पहले क्या था 6 पे में कॉलेजेस में भी जहां पर PG है वहीं पर प्रोफेसर का प्रमोशन मिला करता था. लेकिन नाउ इट इज वेदर यू हैव PG और नॉट, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आप सभी प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में. वैसे यूनिवर्सिटीज में सीनियर प्रोफेसर सभी लोग बन सकते हैं जिनके 10 साल हुए प्रोफेसर कैडर में एंड 10 पब्लिकेशन है, वो सभी सीनियर प्रोफेसर बन सकते हैं. Now, as far as the librarian is concerned, अगर librarian के आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनको अगर टीचिंग का अगर स्टेटस है तो then they are going to have the same qualifications and same eligibility criteria. लेकिन अगर टीचिंग से रिलेटेड वो नहीं है then they have the different criteria. But still, as far as the first 10 to 11 is concerned, even for librarian too, it is same as that of college and university. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. 6000 to मतलब 10 to 11. 11 to 12 जो है ये इट इज सेम टू कॉलेज. मतलब 11 to 12 जैसे कॉलेज में PhD की जरूरत नहीं है, इनको भी PhD की जरूरत नहीं है. आप वेदर यू आर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी doesn't make any difference. If you are librarian, in library assistant librarian, you can go to level 12 without PhD, whether you are working in university or college, right? लेकिन आप अगर यहाँ पर देखिए आप 12 से 13A को अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ही शुड 3 साल तो है सबके लिए, 3 साल दिस इज कॉमन. बट ये सेकंड पॉइंट देखिए, ही और सी हैज डन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट 3 years, राइट. उसमें क्या है? ट्रेनिंग वर्कशॉप है, मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है, मतलब लाइब्रेरी का मेंटेनेंस है,
कोर्स ऑन ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन, मतलब लाइब्रेरी रिलेटेड जो कोर्सेज है वो कोर्सेज आपको करने हैं, बिकॉज टीचर्स को टीचर रिलेटेड कोर्सेज करने हैं, लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी रिलेटेड कोर्सेज करने हैं। आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो, लाइब्रेरियन हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर केडर में आना चाहते हो, मतलब डेप्यूटी लाइब्रेरियन टू डेप्यूटी लाइब्रेरियन, लेकिन लेवल 14 लेवल में अगर आना चाहते हो तो आप 3 साल चाहिए। देन ये कोर्सेज जो है, एनी वन ऑफ द कोर्स जो जैसे मैंने पहले बताया कि मेंटेनेंस रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन का कोर्स होना चाहिए, मूक से रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी। ये आपको कोई कुछ ना कुछ प्रूफ बताना पड़ेगा कि आप जो आईसीटी इंटीग्रेशन का काम आप आपके लाइब्रेरी में किया हो। And then PhD degree is mandatory here. You can see the PhD degree in library science and information, because you are going to be in level 14. And same thing is true with the physical education teacher also. अगर physical education teacher को अगर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में टीचिंग पोजीशन, अगर टीचिंग का इक्विवेलेंट अगर ग्रेड है तो उनको सेम क्वालिफिकेशन है, अगर टीचिंग इक्विवेलेंट ग्रेड नहीं है तो फिर क्वालिफिकेशन अलग है। लेकिन 6000 level 10 to 11 it is same again, whether you are physical education or library, 10 to 11 same रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड लेवल 11 to 12 जो है ये कॉलेज जैसा है, जैसे मैंने बताया कि इसमें पीएचडी की जरूरत नहीं है, तो वो 11 to 12 भी सेम है, कॉलेज टीचर जैसा ही, पीएचडी की जरूरत नहीं है। बट 12 to 13 ये जो है, यहाँ पर आप देखिए he should have 3 years of service, and then courses देखिए यहाँ पर कोर्सेज जो है आप रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर स्पेसिफिक उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का है, ज्यादातर सेम बताया जो टीचर के लिए बताया वही बताया यहाँ पर, राइट। एंड देन इफ यू आर लुकिंग एट दिस लाइक 13 to 14, यहाँ पर लेकिन कुछ अलग रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है। आप देखिए ये तो 3 साल तो सर्विस करनी है, एंड देन एटलीस्ट वन ऑफ द कोर्स करना है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड हो, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन रिलेटेड हो, मूक से रिलेटेड हो। In addition to that, evidence of organizing competitions and coaching camps at least 2 weeks duration. मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट है। आप अगर लाइब्रेरी फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर हो या रिलेटेड हुद्दा आपके पास, डेसिग्नेशन आपके पास है, आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, आपको प्रूफ वो देना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ हैविंग प्रोड्यूस गुड परफॉर्मेंस ऑफ टीम्स, पब्लिक एथलीट्स फॉर कंपटीशन लाइक स्टेट, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल को आप जो है टीम्स परफॉर्मेंस आपने बिल्ड किया आपकी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो आपको प्रूफ देना है, एंड यू शुड हैव पीएचडी एज वेल। सो दीस आर द एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इफ यू रियली वांट टू गो फ्रॉम 13 to 14, राइट। अब जहां तक कोर्सेज का सवाल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि आजकल इंटरनेट मतलब देयर आर मेनी वेबिनार्स व्हिच आर बीइंग कंडक्टेड, IDPs are being conducted, FDPs are being conducted by many colleges. Whether those FDPs are going to be considered for cash promotion. सवाल ये है कि ये जो particular ये है, मेरा अपना एक अलग ओपिनियन है, इसमें वेरी करता है, बिकॉज पर्सन वेरी करता है। मुझे ऐसा मानना है, क्योंकि आप ये पढ़िए, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, यूजीसी का रेगुलेशन जो है ना उसका एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, हमारे इवन सेम जो है रिपीट हुआ है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन में भी। उन्होंने क्या लिखा, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स फैकल्टी ranging from 1 week to 1 month, as well as seminar workshop in different pedagogic discipline specific areas being conducted by center such as, right, conducted by centers such as, इन्होंने कुछ सेंटर के नाम दिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो सेंटर है उनके कुछ नाम दिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बहुत जगह पे ये होता है कि जॉइंट डायरेक्टरी जो प्रतिनिधि होते हैं वो मानते हैं कि भाई अनलेस यू डू दिस कोर्सेज फ्रॉम दीज सेंटर्स they are not going to recognize your courses। मतलब जो कॉलेज, कोई कॉलेज अगर पंडित मदन मोहन मालवीय से अगर एफिलिएटेड नहीं है और उनका स्पॉन्सर नहीं है, एमएचआरडी स्पॉन्सर नहीं किया, तो दे आर नॉट कंसिडरिंग दोज एफडीपीज। मेरा ऐसा कहना है कि अगर वो एफडीपी टिपिकल 2 week ड्यूरेशन का है, if it is full-time program, full-time online, but still it is full-day program, right? And if they are following UGC regulations perfectly,
those FTPs need to be considered, but unfortunately in many cases it is not being considered. So my humble suggestions to most of the teachers would be, you please don't be in state of confusion. It is better to, because nowadays there are many colleges and many universities that are coming up with FDP program which are being sponsored and recognized by Pandit Madan Mohan Malviya Institute, right? So it is better to do those courses which are being sponsored or recognized by this institution, so that you will not be having any problem in your promotions cases, right? कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो 4 क्वाड्रेंट वाला किस्सा जो है ये कंटेंट डेवलपमेंट का और MOOC का, वो क्या है? 4 क्वाड्रेंट ऐसा है कि जब भी हम ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका वीडियो, जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, नाउ इफ आई रिकॉर्ड दिस एंड इफ आई मेड इट अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब, so it can be like one of the quadrant, right? Because I'm speaking and my video is live, right? At the same time I'm giving some, my PPT is also there, right? I'm giving some document, right? So that is also there. Second quadrant is like in the form of document. It could be PDF, it could be text, it could be web services, it could be like PPT or whatever, right? Third is going to be question answer. Like at the end of this session, third quadrant is going to be question answer. Like if you are having question answer, that is going to be a third quadrant, and fourth quadrant is going to be assessment. So unless you have assessment, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी इस बात जो हम अभी जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, राइट, क्वेश्चन आंसर भी है, but assessment is missing. So this is going to be considered as a 3 quadrant e-content. This cannot be considered as a 4 quadrant unless we do the assessment. So अगर आपको 4 quadrant में इसको कन्वर्ट करना है, तो मान लो आप इस टाइप का सेशन आपके स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए ऐसे जरूर नहीं है. What you can do at the end of your lecture, you can provide some questions and you can have the responses of your student through email, right, or through WhatsApp, so that the 4 quadrant can be completed and your e-content can be 4 quadrant e-content. Now let us think about the API. तो अभी एलिजिबिलिटी की बात हुई थी, हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन है. अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी दिस इज द फर्स्ट टेबल इज फॉर कॉलेज एंड सेकंड टेबल इज फॉर यूनिवर्सिटी. अब कॉलेज में देखिए level 10 to 11, right? You need 20 assessment, 20.22 API score during assessment period. This is specifically written here. During assessment period, आपका 5 साल का है, 3 साल का है, जो भी एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस आपको है, मतलब आपको अगर लेवल 10 से 11 चाहिए तो पहले 5 साल में, 11 से 12 चाहिए दूसरे 5 साल में, 12 से 13 चाहिए वो 3 साल में. So during that assessment period आपको 20 चाहिए. If you are in university, you need 40, right? For the same grade, for colleges 20, university 40. For 11 to 12, if you are in college 50, if you are in university 100. Now for 12 to 13A, if you are in college 45. आप यहाँ पर देखिए, आप 11 से 12 50 मांग रहे हो, लेकिन 12 से 13A को आप 45 मांग रहे हो. क्या लॉजिक है इसका? रियली इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. मतलब यूजीसी के दिमाग में और क्या आया पता नहीं. अब उन्होंने स्टैंडर्ड को सब्सिडाइज किया यहाँ पर. सेम थिंग इज ट्रू विद यूनिवर्सिटी एज वेल. यहाँ पर 100 लेंगे, आपको 12 से 13A के लिए 90 रहेंगे. बट मजेदार बात तो ये है, आप देखिए यहाँ पर कॉलेज के लिए यहाँ पर क्या दिया है, 13A से 14 60 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड. वहां पर क्या दिया है 110. अभी वहां पर कहीं असेसमेंट पीरियड दिया नहीं. तो व्हाट पीपल आर इंटरप्रेटिंग, पीपल इंटरप्रेट करते कि भाई वो 110 जो है आपको पूरा लाइफ टाइम का चाहिए. अब मुझे बताओ लाइफ टाइम का कैसे हो सकता है, एंटायर करियर का कैसे हो सकता है? आप जब एसोसिएट प्रोफेसर बने, ऑलरेडी आपका जो एपीआई आपने यूटिलाइज किया है, उस पीरियड में जो भी आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल है, यू हैव यूटिलाइज दैट फॉर योर एसोसिएट प्रोफेसरशिप. आप जब प्रोफेसर बन रहे हो तो एसोसिएट प्रोफेसर ने, एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल में आपने क्या किया, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर. आपकी जो भी पब्लिकेशन है उसी दरम्यान के होने चाहिए, आपका एपीआई जो है उसी दरम्यान का कंसीडर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये अनोमली है, यहाँ पर ये 60 बता रहे, वहां पर 110 बता रहे. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट देयर आर मेनी इश्यूज. तो लोग क्या करते हैं अभी ड्यूरिंग, आप देखिए ना, प्रोफेसर के लिए ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड ओनली 60. क्या स्टैंडर्ड आप मेंटेन करोगे? कोई भी तो प्रोफेसर बनेगा ना. आई एम हैप्पी दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग प्रोफेसर, बट यू नीड टू मेंटेन स्टैंडर्ड. So I don't know why UGC has subsidized the standard like this, unfortunately, and as a result of that we are creating chaos like anything.
अभी जो है प्रोफेसर जो है मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ज्यादातर कॉलेज के लोग हैं। आई अप्रिशिएट, क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज में 11 साल काम किया, ऐसे नहीं कि मैं ऑल ऑफ ए सडन ऊपर से यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। सो इनिशियल पीरियड 11 years आई वाज इन कॉलेज। लेकिन आजकल जो है प्रोफेसर के इंटरव्यूज कैंप में लिए जा रहे हैं यार, वो क्या करे, मजाक बना दिया यूनिवर्सिटीज ने। क्लास में आप प्रोफेसर की प्रमोशन कर रहे हो, अरे प्रोफेसर बना रहे हो, अब आपके इंस्टीट्यूट के एसेट बनने वाले हैं, आप लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग लाइबिलिटीज अनफॉर्चुनेटली, वी आर नॉट क्रिएटिंग एसेट्स अनफॉर्चुनेटली। तो ये कम से कम यूनिवर्सिटी ने ये तो बंद करना चाहिए कि ये कैंप तो कम से कम लगाना बंद करना चाहिए। लेट अस हैव अ रेगुलर इंटरव्यू, हाउ लाइक आस्क दैट फेलो टू मेक अ प्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या किया। अगर कुछ लोगों ने अच्छा किया तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उनको पता चलेगा कि करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम कैंप में ना तो कोई इंटरव्यू ले रहे, सामने बैठ रहे हैं, भाई चलो सिग्नेचर करो एंड देन वी आर प्रमोटिंग पीपल। उसमें जो काम कर रहे हैं वो भी गधे घोड़े सब एक जैसे हमने कर दिया। जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे डिमोरलाइज हो रहे हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे वो प्रोफेसर बन रहे हैं। अब प्रोफेसर पैसे भी, वैसे कुछ लोग ऐसे कि साल पूरे लाइफ टाइम में कुछ नहीं करते। नाउ अभी प्रोफेसर बनने के बाद क्या करेंगे वो प्रिंसिपल। बहुत सारे कॉलेज में प्रिंसिपल आर गेटिंग लाइक कितने परेशान है कि कुछ लोग काम ही नहीं करते। इट्स नॉट ओनली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही है। लोग एक बार हायर पोजीशन मिल गई, हम कुछ करना नहीं चाहते। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म होनी चाहिए। यूजीसी ने बड़ी गलती की, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सुधारना किए नहीं उसमें। यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी कैन नॉट गो अगेंस्ट यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेम है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए भी। यहाँ पर 120 बताया गया ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, वहां पर 110 बताया गया। मतलब आप अगर मान लो उसको जस्टिफाई भी करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? असेसमेंट के दरमियान आप 120, पूरे करियर के दरमियान 110, मतलब क्या मजाक बना के रख दिया हमने। सो दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। आई मीन मेरा खुद का ओपिनियन है, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। एंड जहां तक लाइब्रेरियन का सवाल है, आप देखिए लाइब्रेरियन तो सभी जगह पे सेम है। सो दिस इज फॉर कॉलेज, आई एम सॉरी। जो पहला स्टेज जो है 20 लगेगा, सेम ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड जो है 50 लगेगा, थर्ड जो है 45, राइट। आपको पहले 2 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी है एंड देन राइट फॉर्म 13 है, यूनिवर्सिटीज सिलेक्शन कमेटी, ये सबको पता ही है। इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, ये भी सिमिलर पैटर्न है, मतलब टीचर जैसा ही है। पहला स्टेज 40, सेकंड 100, थर्ड के लिए 90 एंड देन फोर्थ के लिए 120। And same thing is true with physical education as well. There is no difference as well. University as well as college, same, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ, this is very very important. ये जो अपेंडिक्स 2 टेबल 1 जो है, ये मैं बताने वाला था कि ये देखिए अब क्या दिया टीचिंग में, नंबर ऑफ क्लासेस टॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस असाइन। यहाँ पर 80% एंड अबव हम गुड देते, बिलो 80% but like below 80% but 70% above satisfactory and less than 70% non satisfactory। अभी रजिस्टर साहब भी है, बहुत सारे प्रिंसिपल भी होंगे, कोकरे साहब भी है। आप मुझे नहीं लगता किसी ने भी किसी को इवन सेटिस्फैक्टरी भी दिया होगा, सबको गुड ही दिया था। लेकिन सबके सब लोग, सबको पता है सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटी में सभी टीचर अबव 80% क्लासेस लेते नहीं। देयर आर सम कॉलेजेस कि जो मैं तो आपको बताऊं कि मैं जिस कॉलेज में था, कॉलेज का नाम मैं जानबूझ के बताता नहीं, एक कॉलेज में था, एक टीचर थे स्टाफ रूम में पैर ऐसा करके बैठते थे, लिटरली ऐसे पैर स्टाफ रूम के टेबल पे। मैं तो नया टीचर था, बड़े सीनियर टीचर थे वो, मुझे हंसी आती थी और शर्म आती थी कि यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इनको। और जब वो क्लासेस का मैं आपको बोलता हूँ क्या करते थे, क्लासेस तो कभी भी नहीं लेते थे, नेवर। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते थे पता है, जब भी बच्चे वो कॉरिडोर में आते थे, वो स्टाफ रूम के बाहर आते थे और बच्चे को ऐसा हाथ करते थे। आप देख रहे होंगे मेरा ऐसा हाथ, तो आप कुछ भी समझे, आए जिनको आना है वो आए, जिनको समझ जाना है जाओ। बच्चे बेचारे क्या करे, चले जाते थे क्योंकि ये पढ़ाने की आदत ही नहीं थी। ऐसे भी कुछ टीचर है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में, सभी प्रोफेसर बन रहे। अच्छे लोग प्रोफेसर बनना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन जो कुछ नहीं करते उनको नहीं रिवार्ड मिलना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। मैं खुद टीचर हूँ, जो नहीं करना चाहिए उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये सभी देना, सभी को हम गुड दे रहे, सेटिस्फैक्टरी, फॉरगेट अबाउट नॉन सेटिस्फैक्टरी, सभी को गुड दे रहे। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है? अभी ये थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, मैं माफी चाहता हूँ जितने भी टीचर मुझे सुन रहे होंगे, अगर मैं आपको हर्ट किया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज आपको हर्ट करना मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था। मुझे पता है कि आप जो भी सुन रहे हो सभी अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं आपको हर्ट कर ही नहीं रहा हूँ, आपको अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? जो अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने की, पहले मैंने बताया कि दिस लैडर हैज प्रोवाइडेड अस अपॉर्चुनिटी फॉर अपलिफ्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल एज सोशल स्टेटस। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हमारी जिम्मेदारी का मौका कहाँ मिलता है? आप देखिए ये जो एक्टिविटीज है यहाँ पर ABCDEF, ये जितने भी एक्टिविटीज है जी तक, आप इसमें मतलब एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पर कि कम से कम आप शुड बी इन्वॉल्व इन 3 एक्टिविटीज, आपको गुड मिलेगा, कम से कम 3। लेकिन मुझे ऐसा लगता, अब फॉरगेट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सभी को नहीं होगी, मैं मानता हूँ हेड चेयरमैन सभी की नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनेशन का तो सभी का है। एग्जामिनेशन में हम काम करते हैं, आई एग्री, most of us are doing examination work, but what about student related activities, co-curricular activities, extension activities? सब लोग काम नहीं करते, सभी टीचर absolutely काम नहीं करते। मैं चाहता हूं कि this is where we can contribute, this is where we can return back to our institution में हमको इतना अच्छा स्केल दिया ना, this is our responsibility। ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, कुछ डिपार्टमेंट के कुछ लोग तो ऑर्गेनाइज करते, अनफॉर्चुनेटली अगर जो भी प्रिंसिपल होंगे तो मैं आपको हम्बल, मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज उनको आप एनकरेज करिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वालों को भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती, तो कम से कम उनको तो बेचारों को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग करते नहीं, करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट, यहाँ पर भी कैसा है ना, अभी गाइडिंग एक बार प्रोफेसर बन गए, विदाउट गाइडिंग प्रोफेसर बन गए क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, आप क्या गाइड करेंगे? वो प्रोफेसर बनने के बाद कहाँ गाइड करेंगे? अभी प्रोफेसर तो बना दिया गवर्नमेंट ने उनको, अब क्या गाइड करेंगे? सो दिस इज आल्सो मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मुझे करना चाहिए। जैसे कि कोगड़े साहब का कॉलेज है, उन्होंने बताया कि उनके 5, 6, 7 कुछ तो भी पीएचडी सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। दिस इज समथिंग रियली वेरी अप्रिसिएबल, राइट? क्योंकि इतने सारे सेंटर है, इसका मतलब रूरल कॉलेज होने के बावजूद भी इतने सेंटर है, इसका मतलब है कि ज्यादातर टीचर जो है पीएचडी में इन्वॉल्व है। सो दिस इज अप्रिसिएबल थिंग। कंडक्टिंग माइनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी ज्यादातर लोग करते नहीं है। प्रोजेक्ट लिखिए आप लिखते नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि यू मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी टू राइट एटलीस्ट प्रोजेक्ट। आना नहीं आना दैट इज डिफरेंट स्टोरी, हर साल में कम से कम हर टीचर ने एक प्रोजेक्ट लिखना ही चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। नहीं आया तो ठीक है, लेकिन लिखो, क्योंकि लिखेंगे तो कम से कम पता चलेगा कि क्या इश्यूज है। एंड देन एटलीस्ट 1 or 2 ज्वाइंट एक्टिविटीज, राइट? ये इससे मुझे दिख नहीं रहा, वो 1 or 2 ज्वाइंट एक्टिविटी क्या है, ज्वाइंट पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यू जर्नल। तो यहाँ पर भी वही है कि एक बार वंस आई रीच टू द हायर पोजीशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो माय फ्रेंड, टीचर्स फ्रेंड, I have humble suggestion, humble request to all of you that हमारे पर्सनल ग्रीवेंसेस कुछ भी हो सकते हैं प्रिंसिपल साहब के साथ में, या वाइस चांसलर के साथ में, या रजिस्ट्रार के साथ में, लेकिन हमें जो है हमारे पर्सनल ग्रीवेंसेस यहाँ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है, इट इज गोइंग टू बी, दीज एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर स्टूडेंट, राइट? जिनके बलबूते पे हमारे ब्रेड एंड बटर में आता है, तो उनके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रार के लिए काम नहीं करना है, बेसिक के लिए काम करना नहीं है, ना तो हमें प्रिंसिपल के लिए काम करना है, वो बच्चों के लिए काम करना है जिनके वजह से मुझे रोजी रोटी मेरी चल रही है, तो उनके लिए ऑनेस्टली काम करना बहुत जरूरी है। ये मेरा हम्बल सजेशन है आप सभी को। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एपीआई कैलकुलेशंस, राइट? दिस इज अगेन वेरी क्रिटिकल। आप देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर भी मुझे स्ट्रेंज है। आप देखिए पहला जो है ना, रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल, आप अगर फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस की हो तो 8 पर पेपर है, अब बाकी फैकल्टी के लिए 10 क्यों ज्यादा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसमें कोई डिस्पैरिटी होने का कोई सवाल नहीं, सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सब तरफ सेम मार्क है। जैसे कि बुक्स है, इंटरनेशनल पब्लिशर 12 है, नेशनल पब्लिशर 10 है। चैप्टर्स है आपके एडिटेड बुक में, पर चैप्टर 5 होंगे। एडिटेड बुक है आपका इंटरनेशनल पब्लिशर का 10 हो गए। एडिटेड बुक आपका नेशनल पब्लिशर का है 8 हो गए। ट्रांसलेशन इंडियन इन इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस बाय क्वालिफाइड फैकल्टी अगर ट्रांसलेट करते हो तो उसके बुक के लिए 8 है। और ये नीचे का इसमें आ जाता है, इसलिए दिखता नहीं मुझे। anyway, आगे बढ़ते हैं। देन साइटेशंस, क्रिएशन ऑफ आईसीटी मेडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोगी, मान लो आपने कुछ टीचिंग पेडागोगी कुछ डेवलप किया है, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोगी, नया कुछ पेडागोगी, टीचिंग पेडागोगी आपने डेवलप किया, ईच पेडागोगी यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स। डिजाइनिंग ऑफ न्यू करिकुलर और कोर्सेस, पर करिकुलर और पर कोर्स, आप बीओएस मेंबर हो, एक कोर्स आपने किया आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट? मूक कोर्सेस, आपने मूक कोर्सेस के लिए भी 4 क्वाड्रेंट कोर्स के लिए है। आप अगर डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट कोर्स 30 मार्क्स है, आपने एक मॉड्यूल डेवलप किया 5 है, कंटेंट राइटर हो 2 मार्क्स है, आप कोऑर्डिनेटर हो 8 मार्क्स है,
वैसे ही ई कंटेंट का है, क्योंकि मूक और ई कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मूक मीन्स लाइक आप जो भी मूक के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आप कर रहे हो। ई कंटेंट आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपके कॉलेज लेवल पे हो सकता है। तो आप अगर ई कंटेंट 4 क्वाड्रेंट का है तो 12 है पर कोर्स। आप सिमिलरली मॉड्यूल है 5 है। कंट्रीब्यूशन आपका मतलब एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट में अगर कंट्रीब्यूशन है तो 2 है। एंड ई कंटेंट डेवलपमेंट ई बुक के लिए 10 है। एंड देन रिसर्च गाइडेंस, पीएचडी गाइडेंस के लिए पर पीएचडी अवार्डेड 10 एंड पर थीसिस अगर सबमिटेड 5 है। एमफिल और पीजी डेजर्टेशन एमएससी का नहीं है, एमएससी का नहीं है। ई पीजी डेजर्टेशन प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ना उसके लिए पर 2 पर डिग्री अवार्डेड, राइट। रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पर देखिए काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपके पास प्रोजेक्ट है। आपके पास कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है मोर देन 10 लाख 10 मार्क है, लेस देन 10 लाख 5 मार्क है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए अगर मोर देन 10 लाख है तो 5। यहाँ पर भी पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि देखिए कंप्लीट के लिए आपने 10 रखे 10 लाख के, आई मीन ऑनगोइंग के लिए 5 रखे। ये भी डिस्पेरिटी क्यों है, आई डोंट नो, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये भी सेम होने चाहिए थे, क्योंकि ऑनगोइंग भी उतना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड भी उतना इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेंसी, यहाँ पर कंसल्टेंसी पर कंसल्टेंसी आप 3 मार्क्स ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का पेटेंट है 10 मार्क है, नेशनल लेवल का 7 है। एंड देन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आप अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने डेवलप किया हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के लिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी के लिए, आप तो या तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट, रिसर्च पॉलिसी है, प्लेगरिज्म पॉलिसी है, राइट। इंटरनेशनल लेवल का है 10 होगा, यूनिवर्सिटी का होगा, नेशनल लेवल का आएगा वो 7 होगा, स्टेट लेवल का होगा 4 होगा। अवार्ड्स एंड फेलोशिप के लिए अलग मार्क, इंटरनेशनल एंड नेशनल के लिए 7 और 5 है। And then this is for invited lectures and resource person. International abroad में जा रहे हो 7 है, इंटरनेशनल लेकिन विद इन कंट्री 5 है, नेशनल के लिए 3 है एंड स्टेट के लिए 2 है। So this is how the distribution is. Now question is, if you are having the research paper, right, how is the distribution among the authors if there are more than one author, right? यहाँ पर लिखा हुआ है, this is very, it is important now. The peer-reviewed journal or UGC listed journal impact factor to be determined as per Thomson-Reuters. तो ज्यादातर यहाँ पर मैंने तो जहां भी गया हूँ तो ज्यादातर मुझे बड़े प्रॉब्लम आए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को थॉमसन रूटर क्या है यही नहीं समझता। इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है, वो किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर का प्रिंट आउट लेकर आते हैं और कहते हैं कि सर ये इम्पैक्ट फैक्टर है, हमें एगमेंट करना है। वहां पर आप एगमेंट नहीं कर सकते, आप मार्क्स दे सकते हो लेकिन ऑगमेंटेशन नहीं होगा। मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे उस ऑगमेंटेशन का एक स्लाइड बनाया, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर ऑगमेंटेशन कैसे करना है, पीयर पेपर इन रेफरीड जर्नल विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब रेफरीड जर्नल है बट इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है उसका, लेकिन थॉमसन रूटर का है, राइट। थॉमसन रूटर का जर्नल है लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर, क्योंकि क्या है ऐसा कभी कभी होता है कि जर्नल शुरुआत हुआ है लेकिन अभी इम्पैक्ट फैक्टर आया नहीं, राइट, तो उसको 5 मार्क होंगे। लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर 10, 1 to 2 15, 2 to 5 20, 5 to 10 25 एंड मोर देन 10 30। 2 ऑथर है, 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन टू ईच ऑथर, जैसे कि 10 है तो आउट ऑफ 10 मतलब 7 दोनों को साथ साथ मिलेंगे। ट्रूली स्पीकिंग ये ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर भी हो गया, लेकिन अभी वैसा ही है, अभी थोड़ा क्लैरिटी है, फॉर्चुनेटली अभी क्लैरिटी है। पहले जो था ना वो क्लैरिटी नहीं था, अभी तो कम से कम क्लैरिटी है। अगर 10 मार्क है, 2 ही ऑथर है तो ईच ऑथर इज गोइंग टू गेट 7 ईच, ओके 7 ईच, 10 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, 7 ईच हो गए। अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग ऑथर को 30% मिलेंगे, मतलब 3-3 मिलेंगे। मान लो एक पेपर में अगर 10 ऑथर हैं, पहले ऑथर को और करस्पॉन्डिंग ऑथर को 7-7 मिलेंगे आउट ऑफ 10 दोनों को, एंड रिमेनिंग जितने भी है सबको 3-3 मिलेंगे। दिस इज वेरी क्लियर नाउ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिगिटी नहीं है। अभी कैपिंग भी है थोड़ी बहुत, वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं वो बताना चाहता हूँ। पेपर प्रेजेंटेड इफ अ पार्ट ऑफ एडिटेड बुक और प्रोसीडिंग देन इट कैन बी क्लेम ओनली एट वंस। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते, राइट, पेपर भी प्रेजेंट करते हैं और प्रोसीडिंग में भी आता है, तो या तो आप पेपर प्रेजेंटेशन कर लो या तो आप प्रोसीडिंग कर लो, 2 में से 1 ले सकते हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि ज्वाइंट रिसर्च स्टूडेंट, फॉर्मूला है 70%, मतलब आपको को सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर दोनों को 70% मिलेंगे। मान लो अगर 10 मार्क है तो आप दोनों को 7-7 मिलेंगे, राइट। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिसर्च कोर्स स्कोर फॉर द टीचर, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम कैटेगरीज 5B एंड 6 ओनली, कैपिंग खाली है दो पॉइंट के लिए। 5B क्या है, रिसर्च पॉलिसी डॉक्यूमेंट। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, दिस इज 5B, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओनली 5B, 5C भी नहीं, ओनली 5B एंड 6 क्या है, ये इनवाइटेड लेक्चर्स एंड रिसोर्स पर्सन, राइट।
इसका जो है कैपिंग है, अगर इसमें क्या दिया, ये दोनों मिलाकर शैल हैव एन अपर कैपिंग ऑफ 30%, टोटल 30% होगा, मतलब टोटल से मान लो जैसे कैसे होगा ना, आपका 100 स्कोर है, 110 स्कोर है, मान लो 110 स्कोर है, राइट। आउट ऑफ 110 40 आ रहा है आपका 5B और 6 को लेकर, राइट। आउट ऑफ 110 40 आ रहा है 5B और 6 का, आपको इतना आ नहीं सकता, so it is going to be rounded off, क्योंकि आउट ऑफ 110 वो देखा जाएगा कि 30% कितना आएगा, उसको राउंड अप किया जाएगा एंड 60 में उसको ऐड किया जाएगा, so it would be 100 1 or 2 here and there, right? So capping would be there only on 5B and 6, okay? and ये तो ऑथर का मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एपीआई स्कोर का, राइट। अभी ये जो मैंने ये स्पेसिफिक चार्ट मैंने लिखा है, आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी यूजीसी रेफर पीयर रिव्यूड जर्नल, ओके। आप देखिए विदाउट आर्गुमेंटेशन 10 स्कोर है, विद आर्गुमेंटेशन 10 स्कोर है, मतलब ये आर्गुमेंटेशन नहीं है, तो क्या होगा, इसमें एक फार्मूला क्या है, 70% टू ईच फर्स्ट ऑथर एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर एंड 30% टू ईच, मतलब क्या होगा, मान लो 2 ही ऑथर है, साथ साथ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 से ज्यादा है तो पहला ऑथर और प्रिंसिपल और करस्पॉन्डिंग ऑथर को साथ साथ जाएंगे, रिमेनिंग सबको 3-3 जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर इंपैक्ट फैक्टर रेफरेड जर्नल विदाउट इंपैक्ट फैक्टर थॉमसन रूटर का है, तो आपको आर्गुमेंटेशन कितना होगा, आपका 5 होगा, 10 का ये 5 होगा, 10 से आर्गुमेंटेशन होगा, नहीं 5 होगा, 10 तो ये होगा, सो 10 + 5 15, सो 5 से आर्गुमेंट होगा, ये 10 तो कॉमन रहेगा, ये 10 कॉमन होगा, ये 5 आर्गुमेंटेशन होगा, सो 15 का 70% कितना होगा, 10.5, सो इफ देयर आर 2 ऑथर्स 10.5 विल गो टू बोथ ऑथर्स। अगर मोर देन 2 है, 2 ऑथर्स को पहले और करस्पॉन्डिंग ऑथर को 10.5 होंगे, रिमेनिंग 30% 4.5 टू ईच ऑथर। वैसे ही अगर इंपैक्ट फैक्टर 1 है तो आर्गुमेंटेशन 10 से होगा, 10 + 10 10 + 10 20, 20 का 70% 14 टू ईच, फर्स्ट इफ देयर आर 2 ऑथर्स 14 टू ईच, इफ देयर आर मोर देन 2 ऑथर्स पहला और प्रिंसिपल और करस्पॉन्डिंग ऑथर को 14 होगा, एंड द रिमेनिंग ईच ऑथर जितने भी होंगे सबको 6 होंगे। ऐसे ही सबके कैलकुलेशंस है, जैसे कि मैं अभी एक आखिरी बताता हूँ, ये वाला, सॉरी ये वाला देखिए, रेफरेड जर्नल 5 to 10, 5 to 10 क्या होगा, आपको 25 का आर्गुमेंटेशन होगा, ओरिजिनल 10, ये 25 आर्गुमेंटेशन होगा, टोटल 35, उसका 70% कितना होगा, 24.5। अगर 2 ही ऑथर है तो 24.5 गोज टू बोथ द ऑथर्स, राइट, और ईच ऑथर, राइट। रिमेनिंग अगर मान लो 2 से ज्यादा है, पहला और आखिरी ऑथर्स को जाएगा 24.5 एंड रिमेनिंग जितने भी हैं उनको 30% जाएगा, रिमेनिंग सबको जो है 30% जाएगा, मतलब 10.5 टू ईच। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन कैन बी डन, and this has nothing to do with API, I mean SCAS, but universities or college, ये particular universities में assistant professor अगर मान लो recruit करने हैं, and if there are more than like more number of applications, then for scrutiny purpose UGC has given, state government has given some guidelines, marks कैसे calculate करने हैं, तो उसके details है, this is for college, that was for university, this is for college, right? So this is all about, and then remaining regarding table 4 for librarian के लिए भी अलग, जैसे कि टीचर के लिए दिया था टेबल मैंने बताया, दिस इज फॉर लाइब्रेरियन के लिए देखिए इनका अटेंडेंस का दिया है, स्पेसिफिकली रेगुलरिटी ऑफ अटेंडिंग लाइब्रेरी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ डे अटेंडेड, द टोटल नंबर ऑफ days he or she is expected to attend, मतलब जो मान लो अगर 365 days में से how many days she came, and according he or she came, right, and accordingly apart from that उनको क्या क्या करना है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका एक्सपेक्टेशन, उनका एक्टिविटी कहाँ पर होनी चाहिए, लाइब्रेरी रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी रीडर सर्विसेज, असिस्टिंग टुवर्ड्स अपडेटिंग इंस्टीट्यूशन वेबसाइट एंड सो ऑन सो फोर्थ, देन कंडक्ट ऑफ सेमिनार्स, उनके लाइब्रेरी से रिलेटेड सेमिनार्स एक्सपेक्टेड है, डेटाबेसेस, आपका जो लाइब्रेरीज कंप्यूटराइज डेटाबेस है क्या, उसका पूरा डेट कंप्यूटराइज है क्या, एवरीथिंग इज लाइक गिवन इन दिस टेबल, अकॉर्डिंगली देयर द गुड, satisfactory and non-satisfactory grade is going to be grading criteria is going to be decided, and same thing is true for physical education as well, same, right? खाली उनका ये है कि ऑर्गेनाइजिंग इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशंस कितने आपने किया, तो जैसे कि अगर 5 से ज्यादा, मतलब गुड के लिए कितना है, सेटिस्फैक्टरी कितना है, जैसे कि इंट्रा कॉलेज कंपटीशन इज मोर देन 5 डिसिप्लिन, गुड है,
3 to 5 satisfactory है, either good not satisfactory, it means unsatisfactory, it's quite obvious. And then different activities है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपने विद इन यूनिवर्सिटी के लिए कितना किया, विद इन कॉलेज कितना किया, नेशनल इंटरनेशनल के प्लेयर्स आपने डेवलप किए क्या, दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी काउंटेड, इट इज गिवन explicitly. In summary, like overall, this is my like conclusion. The quality publication and other research contribution will have a substantial impact. I mean, it's not only publication, but whatever contribution, research contribution, publication, your project, your book writing, your patents, your consultancy is going to have substantial impact on API. And if we are really honest, committed, and focused towards the welfare of our student, I'm sure, because whatever activities, whatever research we are doing, whatever teaching we are doing, whatever patents we are doing, this is only for our the main stakeholder student. And if you are very honest and committed and focused towards the welfare of our student, EPI score on its own will keep on accelerating, and we are going to be rewarded, and we will be happy in our life. With this, I'm going to stop here. Now I will request organizers to initiate the question answers. Thank you very much.